So today in D block elements we will do ionization enthalpies. Okay, ionization enthalpies of D block elements. So let us try to understand the trends in ionization enthalpy. Acha, before we understand the trend in ionization enthalpy, do you remember there is first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third ionization enthalpy? Let me tell you. Suppose for example, aluminium. Aluminium has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, right? So this is the last shell. So 3s2, 3p1. Taking out this electron, the amount of energy required to take out this electron is known as first ionization enthalpy, first IE. If you want to, then it becomes Al to Al plus 1. Got my point? Again, after that, this is the Al ka configuration. From there, if you take out one electron, that becomes first ionization enthalpy. Then Al plus 1 ka configuration is only this much. This is vacant. The 3p orbital is vacant. So taking out this one, from Al plus 1, if you want to create Al plus 2, then that becomes your second ionization enthalpy to take out the next electron. And in this way, from Al plus 2, if you want to create Al plus 3, taking out another electron is third ionization enthalpy. Am I being able to make myself clear? Huh? So this is, I hope that you have understood this. Backta shoro to eta. ঠিক আছে কিসের ছায়া পড়তেছে রে হাতেরই ছায়া পড়তেছে So that is the third ionization enthalpy. So I hope that you have understood. Is this clear to you? First ionization enthalpy, second ionization enthalpy. Now if we go and need to study this, see, let us read what they have written. There is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition element from left to right due to increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals. Acha. Means they want to say that if you go along the series are done here in your book only. See, this is the ionization enthalpy of scandium to zinc. ओके फर्स्ट सीरीज का बहुत सारा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ स्कैंडियम टू जिंक okay but they have said in general in this text of yours that there is an increase in ionization enthalpy along each series मतलब सब सीरीज का बात किया है यहाँ पे अगर हम देखेंगे सब सीरीज़ का बात किया है 3D सीरीज़ का भी बात किया है 4D सीरीज़ का भी बात किया है 5D सीरीज़ का भी बात किया है इफ़ यू मूव अलोंग द सीरीज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज दे आर सेइंग दैट इफ़ यू मूव अलोंग द सीरीज़ टेकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बिकम डिफिकल्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन राइट और रॉन्ग सो there is an increase in ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals. Now they are trying to mean from there that when you move along a series, when you move from suppose scandium to titanium to vanadium to chromium, you have already the last shell fulfilled. All of them have 4s2, 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 4s2. But what is happening? 3d1, 3d2, 3d3, that's 3d4. That means the inner d orbital is getting filled up. Right or wrong? And when inner d orbital is getting filled up, and also nuclear charge is increasing. I mean, one proton karke is increasing inside the nucleus. Right or wrong? So ionization enthalpy must increase. Is this clear to you? Now the fact is this, that as because they in the first line they are trying to make you understand that as because the electrons are entering in the inner d orbital, as because the electrons are entering in the inner d orbital and the last shell is already fulfilled, already having 2 electrons, so due to the increase of the one proton inside the nucleus, the pull is becoming more and more.
Okay, fine. This is a general talk. Then now let us go to some more specific talks about this. Now, okay, fine. What they try to mean the general understanding, we understood. Now what they said, table 8.2. Table 8.2 gives the values of the first 3 ionization enthalpies of the first series of transition elements. Okay, let's watch it. This is the first series, scandium to zinc. First 3 ionization enthalpies are given. Ionization enthalpy 1 means formation of Sc plus 1, Ti plus 1, vanadium plus 1, chromium plus 1, manganese plus 1, iron plus 1, cobalt plus 1, nickel plus 1, copper plus 1, zinc plus 1. This is ionization enthalpy 2. From zinc plus 1 to zinc plus 2 कितना एनर्जी लगता है? जिंक प्लस 2 स्कैंडियम प्लस 2, टाइटेनियम प्लस 2, वैनाडियम प्लस 2 स्टेट करने में कितना एनर्जी लगता है? प्लस 1 से प्लस 2 करने में, या प्लस 2 से प्लस 3 करने में कितना एनर्जी लगता है? राइट और रॉन्ग? सो दैट मीन्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्लोजली लुक इनटू दिस ट्रेंड. इन केस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 631 से 656, 656 से थोड़ा घट गया 650, 653, 717, 762, 758, 736, 745, 906. मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंक्रीज है लेकिन रैपिड इंक्रीज नहीं है. राइट और रॉन्ग? हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज है लेकिन रैपिड इंक्रीज नहीं है, और कहीं कहीं एनोमली दिख रहा है. 656 से 650 घट चुका है, और यहाँ पे तो रैपिड इंक्रीज है ही नहीं, बिल्कुल भी रैपिड इंक्रीज नहीं है, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा रैपिड हुआ है, लेकिन छोड़ो, बोल सकते कि रैपिड इंक्रीज नहीं है. अच्छा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी 1235 से 1309, 1309 से 1414, 1562, 1592, 100 कुछ 100-150 करके बढ़ रहा है. राइट और रॉन्ग? लेकिन यहाँ पे देखो घट चुका है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो यहाँ पे एनोमली दिख रहा है. राइट और रॉन्ग? यहाँ पे कहीं पे घटा है? ओह देखो यहाँ पे घट चुका है, तो यहाँ पे भी एनोमली, और यहाँ पे और कहीं पे एनोमली दिखा है, देख लेते हैं पहले, फिर ढूंढेंगे रीज़न, है ना. और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2939, 2393, 2657 है, घटा है ना बढ़ा है, सॉरी बेकार में मार्क कर दिया. 2656, 2833, 2 घटने से देखना है, घटा होगा, ये घटा है ना, ये सर नो. और फिर 3243, फिर उतना ज़्यादा रैपिड इंक्रीज नहीं दिख रहा है ना. फिर भी तुमको नहीं लगता कि सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में फिर भी 300 करके बढ़ रहा है, 300-200 करके, 200-250 करके बढ़ रहा है, ये सर नो. लेकिन फर्स्ट में तो मतलब 15-16 करके बढ़ रहा था, सेकेंड में 100-150 करके बढ़ रहा है. राइट और रॉन्ग? तो इसको लेके बात करते हैं. इज दिस क्लियर टू यू? ये एनोमली नहीं है. एनोमली को ब्लैक कलर कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. यहाँ पे एनोमली दिख रहा है, यहाँ पे एनोमली दिख रहा है, यहाँ पे एनोमली दिख रहा है, और यहाँ पे एनोमली दिख रहा है. मतलब टाइटेनियम प्लस 1 से वैनाडियम प्लस 1 में इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन डिक्रीज़ हुआ है. क्रोमियम प्लस 2 से मैंगनीज प्लस 2 में इंक्रीज़ होना चाहिए था, डिक्रीज़ हुआ है. और मैंगनीज प्लस 3 से Fe प्लस 3 में इंक्रीज़ होना चाहिए था, डिक्रीज़ हुआ है. कॉपर प्लस 2 से जिंक प्लस 2 में इंक्रीज़ होना चाहिए था, डिक्रीज़ हुआ है. राइट और रॉन्ग? क्योंकि जनरल ट्रेंड में ये लोग क्या बता रहा है, जनरली क्या हो रहा है, जनरली जब तुम अलोंग द सीरीज जा रहे हो वैसे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट इंक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. राइट और रॉन्ग? तो फिर थोड़ा थोड़ा एनोमली क्यों दिख रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4 जगहों पे एनोमली क्यों है. और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि रैपिड इंक्रीज क्यों नहीं है. देयर शुड हैव बीन रैपिड इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज, व्हाई देयर इज नॉट रैपिड इंक्रीज, व्हाई देयर इज लिटिल इंक्रीज. तो इस बात को लेकर पढ़ाई करना पड़ेगा. चलो देखते हैं क्या लिखा है. इज दिस क्लियर टू यू? प्रॉब्लम समझ में आया? अच्छा. These values show that successive enthalpies of these elements do not increase as steeply as in case of non-transition elements. Oh, जो चीज़ नोटिस किया था वही चीज़ लिखा हुआ है.
These values show that the successive enthalpies of these elements do not increase as steeply, मतलब उतना rapidly, as in case of non-transition elements. हाँ, तुम अगर non-transition elements का along the period देखोगे ना, यहाँ पे along the period देखो, भयंकर increase होता है ionization enthalpy. लेकिन यहाँ पे जब तुम नोटिस कर रहे हो उतना इंक्रीज, उतना स्टीपली इंक्रीज नहीं हो रहा है किसी भी सीरीज में. हाँ चलो, पहला सीरीज का एग्जांपल वैल्यूज तुमको दिया हुआ है, लेकिन किसी भी सीरीज में उतना स्टीपली इंक्रीज नहीं हो रहा है. ऑन द अदर हैंड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादा स्टीपली इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एक से दूसरे में जाओगे तो. The variation in ionization enthalpy along a series of transition elements is much less in comparison to the variation along a period of non-transition elements. एक ही बात दो बार बोला है, मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादा वेरिएशन दिखता है, यहाँ पे उतना वेरिएशन नहीं दिख रहा है. हाँ ठीक ही तो है, उतना वेरिएशन तो नहीं दिख रहा है. देखो ना, उतना वेरिएशन कहाँ दिख रहा है, देखो ना, उतना वेरिएशन कहाँ दिख रहा है. 631, 656, 650, 653, 15-16 करके बढ़ रहा है. इसमें क्या है, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है 50. ठीक है, तो एनीवे, तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस, बट the magnitude of the increase in the second and third. The first ionization enthalpy in general increases, but the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpies for the successive elements is much higher than along a series. हाँ, ये चीज़ हमने भी नोटिस किया है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो इंक्रीज का वैल्यू है, जो तो डेल वैल्यू है, जो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है सेकेंड और थर्ड में. फर्स्ट में उतना इंक्रीज का वैल्यू नहीं है. ये सर नो. अब इनका रीजन क्या है, यह ढूंढना पड़ेगा. The irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3D series, though a little chemical significance. अब ये बात क्यों बताया, क्योंकि लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस का, क्योंकि कहीं पे भी केमिस्ट्री में नहीं दिखा गया है कि स्कैंडियम 1, टाइटेनियम 1, वैनेडियम +1, क्रोमियम +1, मैंगनीज +1, आयरन +1, कोबाल्ट +1, निकल +1, ये सब कहाँ मिला. कॉपर +1 मिलता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब किसी एलिमेंट में, सॉरी किसी कंपाउंड में कभी देखते हो नहीं ना. तो क्या हो गया, तो उसका मतलब है लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस. कंपाउंड में तो उस मतलब +1 आयन ऑफ दिस सीरीज डजंट एग्जिस्ट, डजंट रियली वी फाइंड वेरी कॉमनली. So that is why they have said the though of little chemical significance. But the irregular trend of the first ionization enthalpy can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbitals. एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कैन बी altering the energies of 4s and 3d orbitals. You have learned that when d block elements form ions, ns electrons are lost before n-1 d electrons. ये तो सही बात है, सही बात है. देखो क्या है कि तुम अगर ऐसे देखो, कहाँ करूँ, यहाँ करता हूँ. एक, दो, तीन, चार, 5. ये है तुम्हारा n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ये है ns इलेक्ट्रॉन्स. ns इलेक्ट्रॉन्स में 2 होगा, और यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा, राइट और रॉन्ग. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा जल्दी लूज होता है ना, मतलब पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पहले 4s इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिर 3d इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पहले 5s इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर 4d इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. मतलब इन सीरीज में पहले तो 4s भरा हुआ है ऑलरेडी, तो 4s इलेक्ट्रॉन तो पहले निकलेगा ना, फिर d इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा. ये बात पक्की है. इसमें भी सॉरी, ये बात पक्की है. फिर इसमें भी सेम ही चीज़ होगा. ये सुनो, तो अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया है लोग कि यू हैव लर्न दैट व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयंस, ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बिफोर n-d इलेक्ट्रॉन्स एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड इन 3d सीरीज. ठीक ही बात है. एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड इन द 3d सीरीज, एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड इन द अलॉन्ग द सीरीज ऑफ द 3d सीरीज, देन वी सी दैट ns इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट. 4s2 इलेक्ट्रॉन्स, 4s1, 4s2 ये पहले लॉस हो जाएगा, फिर 3d से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा. Right or wrong? Means when we talk about, इसका मतलब क्या हुआ, when you talk about first ionization enthalpy and second ionization enthalpy, we are talking about removal of 4s का first electron and 4s का second electron.
समझो बात को. When you are talking about removing first ionization enthalpy, value of first ionization enthalpy and second ionization enthalpy, we are talking about what? We are talking about removal of 4s electrons at first. Are you getting my point? 4s 1 electron, 4s 2 electrons. Is this clear to you? So as we move along the period in 3D series, we see अच्छा d electrons. ये बुझ गए. As we move along the period in 3D series, we see that nuclear charge increases from scandium to zinc. हाँ सही बात है भाई, nuclear charge is increasing 1 करके, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल ऑफ इनर सबशेल. हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि 4s तो यहीं से भर के चला गया था, 4s2 तो यहीं पे भर गया है. अब यहाँ पे जब तुम एक करके प्रोटॉन न्यूक्लियस में भर रहा है, एक करके प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, मतलब इनर सबशेल फुलफिल हो रहा है कंजिक्यूटिवली जब तुम जा रहे हो. समझ में आया इतना? अच्छा, जिंक बट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द इन ऑर्बिटल ऑफ इनर सबशेल, दैट इज 3D ऑर्बिटल्स. दीज 3D इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3D ऑर्बिटल्स में भर रहा है, यहाँ पे इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में, इसमें ये ऑलरेडी भरा हुआ है, ये सब के लिए भरा हुआ है. अभी जब ये तुम इंक्रीज करके जा रहे हो, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में घुस रहा है तो 3D1, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और घुस रहा है तो 3D2, 3D3, 3D4 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है. अच्छा, तो अब बात ये हुआ कि इसको यहाँ पे रखो. तो अब बात ये हुआ कि the 3D electrons shield the 4s electrons. The 3D electrons shield the 4s electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. अच्छा, therefore the atomic radii decrease less rapidly. मतलब ये लाइन बात तुमको लिख दिया है, कंफ्यूज तो हो गई, हम दोनों भी कंफ्यूज हुए थे पहली बार पढ़ के, है ना? तो क्या लिख दिया है, दीज 3D electrons shield the 4s electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. Therefore the atomic radii decrease less rapidly. Thus, ionization energies increase only slightly along the 3D series. तो यहाँ पे रीज़न मिल गया है कि यहाँ पे जो इंक्रीज का वैल्यू है वो इतना स्लाइट क्यों है, I mean इतना स्टीप इंक्रीज क्यों नहीं है. तो इसका रीज़न ये हुआ कि जब 3D इलेक्ट्रॉन्स घुस रहा है, बेटा इसको से पकड़ो तो ये प्रीतिका, हाँ सोचो यहाँ पे मैंने 4s2 भरा हुआ है, राइट और रॉन्ग, क्या करता हूँ मैं, हाँ 4s2 भरा हुआ है. अब 3D 1 2 3 4 5 3D भरने को है. अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुसा. देख, सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, तो एक तो पहली बात है कि अगर वैकेंट रहेगा, ठीक है, तो कोई घंटा शील्डिंग करेगा. पहली बात तो ये है कि डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट और भद्दा है और गंदा है, और ये चीज़ हम लोग कल सीख चुके हैं, I mean आगे दिन सीख चुके हैं, राइट और रॉन्ग. अब अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, सोच खाली डी ऑर्बिटल है, तो उतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएगा, राइट और रॉन्ग. लेकिन चलो फिर भी डी इलेक्ट्रॉन्स अगर भरने लगा है तो तुम आगे बढ़ रहे हो सीरीज में. फिर भी डी इलेक्ट्रॉन्स अगर भरने लगा है तो तुम सीरीज में आगे बढ़ रहे हो, राइट और रॉन्ग. तो जैसे जैसे तुम सीरीज में आगे बढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा बहुत तो शील्डिंग हो रहा है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ऊपर से उल्टा ये भी दिमाग में रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा भी नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट सोचो. पहली बात तो ये कि डी ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, अच्छा डी ऑर्बिटल का खुद का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता, बताओ क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होता है,
उसका खुद का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होता। कोई एक डी ऑर्बिटल ऐसा है तो कोई एक डी ऑर्बिटल ऐसा है, राइट और रॉन्ग? तो उसका खुद का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल का शील्डिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस खींच लेता है उन लोगों को अपनी तरफ, एक जन दूसरे जन को। न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या? न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है उससे बचाना, राइट और रॉन्ग? वो खुदा ही अच्छा नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो पहली बात हुई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस है तो थोड़ा बहुत शील्डिंग इफेक्ट तो मिलेगा। हाँ चलो, मानता हूं कि जितना भरे जा रहा है तो जितना दूसरे ऑर्बिटल्स में तुम एक्सपेक्ट करोगे उतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है ना। तो इन दोनों का कंबाइंड रीजन सोचो। पहला रीजन अगर सोचोगे कि शील्डिंग इफेक्ट ऐसे सोचोगे, ऐसे सोचो, तो पहला रीजन अगर ऐसे सोचोगे कि शील्डिंग इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो तुम एक्सपेक्ट करोगे क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए, भयंकर इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो खींच खींच के छोटा कर देना चाहिए, जो हम लोग पहले पढ़े थे, खींच खींच के एटम को छोटा कर देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से शील्डिंग इफेक्ट मिल रहा है। यही रीजन है कि जितना तुम आगे जा रहे हो सीरीज में, though you are expecting the ionization enthalpy to increase rapidly, but it is not increasing that much rapidly. It is increasing. It is increasing. Why? It is increasing because d electrons भर रहा है, and d electrons भर रहा है तो d electrons थोड़ा मतलब उतना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो जो ns2 इलेक्ट्रॉन्स है यानी 4s2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको एटम खींच ले रहा है। तो तुम एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा उतना खींचता जाएगा, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स का तो घंटा का शील्डिंग इफेक्ट है, एक्सपेक्ट करोगे। तो इतना तुम जाओगे तो 4s इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना रैपिडली भी ये इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर में इंक्रीज कर रहा है, d6 d7 d8। तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज को ये डी इलेक्ट्रॉन्स का पोर शील्डिंग इफेक्ट भी कुछ कुछ काउंटर कर रहा है। और यह रीजन है कि इंक्रीज होते हुए भी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पोर है, फिर भी रैपिड इंक्रीज नहीं है, क्योंकि पोर होने से भी शील्डिंग इफेक्ट का प्रेजेंस, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यही चीज यहां पे लिखा है कि these 3D electrons shield the 4 electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield one another. Therefore, the atomic radii decrease rapidly. Thus, ionization enthalpy increase only slightly along the 3D series. तो एक लाइन में कितना कुछ बताया है, मैंने जो एक्सप्लेन किया समझ में आया? The doubly or more highly charged ions have dn configurations with no 4s electron. Obviously, अगर +2 चार्ज बन जाए तो 4s का लास्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल गया दोनों, ये तो समझ में आता है ना। 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निकल जाता है। अगर +2 चार्ज हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर +2 चार्ज है किसी भी एलिमेंट का, x+2 है, कोई भी डी ऑर्बिटल 3D सीरीज का या 4D सीरीज का या 5D सीरीज का, तो उन लोगों का dn कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ d में इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये सुन नो। So dn, therefore the atomic radii the doubly or more slightly charged ions, more highly charged ions have dn configuration. more highly मतलब अगर +3 +4 है फिर भी तो dn configuration होगा, क्योंकि d से ही निकलेगा अभी। dn configurations with no 4s electrons. A general trend in increasing values of second ionization enthalpy is expected as the effective nuclear charge increases, because one d electron does not shield another electron from the influence of the nuclear charge, because d orbitals differ in direction. ये अभी बोला मैंने, ठीक है, बोला ना कि d orbitals का डायरेक्शन इधर उधर होता है। तो एक d orbital का इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता है, राइट और रॉन्ग? तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है तो इसको निकालने में आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा,
फिर 4, देखो सबसे पहली बात 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सोचो कुछ एक है 5 जूल्स। फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये अगर निकल गया तो डीएन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये निकल गया सोचो। तो अभी क्या हो रहा है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 को शील्ड कर रहा है। अब बताओ, मानता हूं कि पोर्ट शील्डिंग इफेक्ट है, इसको निकालना ज़्यादा आसान है कि इसको निकालना ज़्यादा आसान है? इसको निकालना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स उतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाएगा, ऊपर से पोर्ट शील्डिंग इफेक्ट है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? हाँ, ठीक से सोचो। अच्छा, along the period. शील्ड नहीं, हाँ अलोंग द पीरियड शील्ड नहीं कर पा रहा है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा ना, तो क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो इसको निकालने से ज़्यादा मुश्किल होगा इसको निकालना, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है, इसको जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है। तो अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी तो हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि हम लोग डी ऑर्बिटल से निकालते हैं, ठीक है। अब चलो, ये तो सेकेंड और थर्ड का कंपैरिजन हो गया, थर्ड और फोर्थ का वैसे नहीं सोचते हैं कि इनको निकालना, इनका डी ऑर्बिटल्स से इनको निकालना अलोंग द पीरियड, तुम जब जैसे जाओगे ये वाले को निकालना टफ होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या डी इलेक्ट्रॉन्स का वैसे ही शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है। सबका तो डी ऑर्बिटल्स का साइज तो सेम ही है ना, इसका सबका ही तो 3D ऑर्बिटल्स है। और जैसे तुम ऐसे इस तरफ जा रहे हो, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड के बाद से, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 इलेक्ट्रॉन 4s 0 हो गया है। अब तुम क्या D5 जो है वो ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो? सारे डी ऑर्बिटल्स का साइज सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब डी इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा है भी नहीं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, पुल ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल आल्सो इंक्रीज। इज दिस क्लियर टू यू? The general trend in increasing values of the second generation enthalpy is expected as effective nuclear charge increases, because d electrons does not shield one another from the influence of nuclear charge, because d orbitals differ in direction. और d orbitals क्यों नहीं shield कर पाता? क्योंकि difference in direction है। Then, however, the trend of steady increase in second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3 respectively. In both the cases, the ions have D5 configuration. Similar breaks occur at corresponding elements in their transition, in the latter transition. Oh, अच्छा, ये बात जो है यहाँ पे मिला था ना हम लोगों को, Mn+2 से Fe+2 है ना। However, the trend of steady increase in the second and third ionization enthalpy breaks for the formation of Mn+2 and Fe+3. अच्छा, ये देखो, Mn+2 फॉर्मेशन के वक्त घट रहा है, घट 1592 और 1509, और Fe+3 के फॉर्मेशन के वक्त भी ये मतलब 3260, Fe+2 फॉर्मेशन के वक्त भी 2962 घट रहा है। राइट और रॉन्ग? क्यों घट रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी घट चुका है क्योंकि क्रोमियम का ज़्यादा है यहाँ पे, ये मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। राइट और रॉन्ग? और ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फॉर्मेशन ऑफ Mn+2 and formation of Cr+2 Mn+2, a formation of Mn+3 और Fe+3। मेरे को एक बात बताओ, Cr+2 जब तुम करोगे और Mn+2 जब तुम करोगे तो तुम लोग 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। राइट और रॉन्ग? अब इस लाइन को समझना है कि यहाँ पे ब्रेक क्यों होता है Mn+2 और Fe+3 फॉर्मेशन में। तो तुमको सोचना है कि तुम जब Mn+2 फॉर्मेशन में डिक्रीज हो रहा है, ब्रेक है, और
Fe+3 फॉर्मेशन में डिक्रीज हो रहा है। मतलब देखो, जब तुम Mn+2 फॉर्म करोगे तो Mn+1 से Mn+2 फॉर्म करोगे। जब तुम का किसके साथ डिक्रीज हो रहा है? क्रोमियम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। तो क्रोमियम को देखते हैं। क्रोमियम का जब Cr+2 फॉर्म करोगे तब तुम देखो Cr+2, ये देखो यहाँ पे देखो सब मेटल्स का लिखा हुआ है, आई मीन आयंस का भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नोटिस करो बे, नोटिस हियर 3d5 से 3d4 बना रहे हो। मतलब क्रोमियम +1 से क्रोमियम +2 में जब शिफ्ट कर रहे हो तुम d इलेक्ट्रॉन से निकाल रहे हो, d ऑर्बिटल से। मतलब d5 से d4 में जा रहे हो, राइट और रॉन्ग। तो जब तुम d5 से d4 में जा रहे हो, जैसे कि क्या होगा यहाँ पे, केस टू होगा। जब तुम क्रोमियम लिखोगे तो क्रोमियम का हो गया बच्चा 3d5 4s1। तो जब तुम क्रोमियम +1 फॉर्म करोगे तो ये 4s1 को निकालोगे तो 3d5। जब तुम क्रोमियम +2 को फॉर्म करोगे तो 3d4 होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। वैसे ही मैंगनीज का चेक कर लेते हैं। मैंगनीज का हो जाता है तुम्हारा 3d5 4s2, है कि नहीं। जब तुम मैंगनीज 1 फॉर्म करोगे, मैंगनीज +1, तो तुम्हारा 3d5 4s1 आएगा। और जब तुम मैंगनीज +2 फॉर्म करोगे तो यही इलेक्ट्रॉन निकालने से हो जाएगा, तो तुम्हारा 3d5 आएगा। अब तुम मेरे को ये चीज़ बताओ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक निकाल रहे हो, इसका एक निकाल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली बढ़ना ही चाहिए। लेकिन क्रोमियम +1 से जब क्रोमियम +2 में तुम शिफ्ट हो रहे हो, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का बात जब चल रहा है, राइट और रॉन्ग, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जब बात चल रहा है तब तुमको 3d5 से निकालना हो रहा है और यहाँ पे 4s1 से निकालना हो रहा है। तो कौन सा आसान है? 4s1 से निकालना आसान है, क्योंकि ये d ऑर्बिटल का लोचा मैंने यहाँ पे समझा दिया है, राइट और रॉन्ग। d ऑर्बिटल से निकालना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल से निकालना ज़्यादा मुश्किल है। क्या? क्योंकि ये हाफ फील्ड है। ची ये स्टेबल है ना, ये स्टेबल है। d ऑर्बिटल से निकालना मुश्किल क्यों होगा? d ऑर्बिटल से निकालना ठीक ही है, कोई बात नहीं है, स्टेडी इंक्रीज तो हो ही रहा है। ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड से यहाँ इधर आना और ये यहाँ से 4s से निकालना, ये आसान होगा। रीज़न ये है। तो इसीलिए ना यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है मेरे को। ब्रेक मिल रहा है मतलब स्टेडीली इंक्रीज हो रहा था। d ऑर्बिटल से तुम निकाल रहे थे, एक एक करके निकाल रहे थे यहाँ से, राइट और रॉन्ग। तो d ऑर्बिटल से निकाल रहे हो तो कोई बात नहीं, किंतु d5 से निकालना चाप है, राइट और रॉन्ग। और d5 से निकाल रहे हो, ठीक है, तो इन लोगों से बढ़ ही रहा है, कोई बात नहीं। d5 स्टेबल है। यहाँ से यहाँ पे तो तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो तुम d से निकालते निकालते 4s से निकालना स्टार्ट किए हो, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन। देन सब में d से निकाल रहे हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? 4s से निकाल रहे हो, राइट और रॉन्ग। इज दिस क्लियर टू यू? तो एक की बार में 4s से जब तुम निकालने जाओगे तो वो आसान हो जाएगा एटलीस्ट। इज दिस क्लियर टू यू? इस वजह से यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है। तो कोई अगर पूछ दे व्हाई इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज +2 +1, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज +2 इज लेस देन दैट ऑफ क्रोमियम +2, बिकॉज फ्रॉम क्रोमियम +1 टू क्रोमियम +2 फॉर्म करने में मेरे को d5 से निकालना पड़ रहा है, और मैंगनीज +1 से मैंगनीज +1 में फॉर्म करने के लिए मेरे को 4s से निकालना हो रहा है। इसीलिए ये आसान है, ये आसान है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है। सेम टाइप ऑफ ब्रेक यहाँ पे भी मिल रहा है, आई गेस सेम टाइप ऑफ ब्रेक तुमको यहाँ से भी मिल रहा है। मतलब यहाँ क्या बोला है? एंड Fe+3 फॉर्मेशन। अच्छा चलो Fe+3 फॉर्मेशन देखते हैं। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अच्छा Fe का इधर लिखेंगे, किसका घटा है? Fe का ही घटा है ना, Fe का ही डिक्रीज हुआ है ना। अच्छा Fe, तो ये क्या है? मैंगनीज +3। अब मैंगनीज +3 फॉर्मेशन करने जाओगे तो तुमको 3d5 से निकालना पड़ेगा, 3d4 बनाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। और Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन, Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? लिखो तो। Fe का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा है 3d6 4s2। ओ 3d6 4s2, तो तू खुद सोच, इधर देख 3d6 4s2 है, तो Fe+2 हो जाएगा 3d6, राइट और रॉन्ग। तो Fe+3 क्या होना पड़ेगा? 3d5। तो तू मेरे को बता 3d6 से निकालना आसान है कि 3d5 से निकालना आसान है? 3d6 से निकालना आसान है, क्योंकि हाफ फील्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेक्स मिल रहा है। ये ब्रेक और ये ब्रेक समझ में आ गया, क्यों डिक्रीज हो रहा है अचानक इंक्रीज होते होते।
इंक्रीज क्यों हो रहा है कंटिन्यूअसली वो तो पता है, क्योंकि डी से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब थोड़ा थोड़ा करके टफ हो रहा है। लो इंक्रीज क्यों है उसका रीजन पता है, इंक्रीज क्यों पता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं है वो पता है, लेकिन इंक्रीज होते होते यहाँ पे डिक्रीज क्यों मिला है वो भी पता चल गया। इज दिस क्लियर टू यू? आया समझ में? अभी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये वीडियो प्रिटी कुछ लंबा हो गया है, तो इसको बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।